11ویں صدی کی آخر مسلمانوں پر تاریخ کا سب سے مشکل ترین دور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا مسلم دنیا ختم ہونے والی ہے۔ شمال کی طرف سے منگولوں کی یلغار تھی، مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹے جا رہے تھے اور شہر کی شہر روندے جا رہے تھے۔ مغرب سے صلیبیوں کی یلغار تھی۔ میڈل ایسٹ عرب کے بیچوں بیچ 4 صلیبی ریاستیں قائم ہو چکی تھی۔ کنگڈم آف یروشلم، کاؤنٹی آف ایڈیسا، پرنسپلٹی آف انٹوائک، کاؤنٹی آف ٹریپولی۔ مسلم دنیا منتشر تھی، سلجوق، عباسی، فاطمی آپس میں الجھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو فتح کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اندرونی اقتدار کی لڑائیاں تھیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تمام مسلمان اپنی بقا کے لیے فکر مند تھے۔ مایوسی، بے بسی، پریشانی اور مجبوری کا عالم تھا، اسی طرح جیسے کہ آج کل مسلم دنیا سروائیو کر رہی ہے۔ اسی سے کہیں زیادہ بدتر اس مشکل ترین دور میں ایک حکمران ایسا تھا جس نے ہمت کی، تمام مسلمانوں کو متحد کیا اور صلیبیوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے سب سے بڑی جنگ کی تیاری کی۔ نور الدین زنگی۔ 1095 میں مسلم دنیا مختلف خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ شام، اناطولیہ اور فارس کے ایک بڑے حصے پر سلجوق حکمران تھے۔ شام کے کچھ حصوں، یروشلم اور مصر پر فاطمی حکمران تھے اور بغداد پر عباسی خلافت تھی۔ قسطنطنیہ، یونان، بلغاریہ اور سربیا پر بازنطینی حکومت تھی۔ آپس کی لڑائیوں نے ان 3 مسلمان ریاستوں کو انتہائی کمزور کیا تھا۔ دراصل 1071 میں میلاسکرت کی جنگ میں سلجوق نے بازنطینیوں کو شکست دے کر ان کے بہت سارے علاقے فتح کیے تھے۔ اس جنگ کا انتقام لینے کے لیے بازنطینی شہنشاہ الیکسوس اول نے عیسائی پوپ اربن کو ایک خط لکھا جس میں مسلمانوں کی کمزوریوں کے بارے میں بتایا اور کہا بہترین موقع ہے ہم مل کر بیت المقدس واپس لے سکتے ہیں۔ اس اپیل پر یورپ کے بڑے بڑے جنگجو ایک بہت بڑا قافلہ لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر کی قیادت صلیبیوں کے طاقتور سپہ سالار گوڈفرے اور بیلڈون کر رہے تھے۔ یہ جنگ 1096 سے 1099 تک جاری رہی اور اس کو ہسٹری میں فرسٹ کروسیڈر وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں صلیبیوں نے سلجوق کو شکست دے کر جنوبی ترکی اور شمالی شام کے کچھ علاقے فتح کر کے یہاں ایک صلیبی ریاست قائم کی، دا کنٹری آف ایڈیسا، اور اس کے بعد انطاکیہ اور الیپو کے بہت سارے علاقے فتح کر کے یہاں دوسری صلیبی ریاست پرنسپلٹی آف انٹوائک قائم کی، اور اس کے بعد طرابلس اور بیروت وغیرہ فتح کر کے یہاں تیسری صلیبی ریاست کاؤنٹی آف ٹریپولی قائم کی، اور پھر فاطمی سلطنت کو شکست دے کر بیت المقدس پر چوتھی صلیبی ریاست قائم کی، دا کنگڈم آف یروشلم۔ اس جنگ کے بعد صلیبیوں نے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی، ایسے دنیا جہاں صلیبی ریاستیں مسلمان حلاقوں کے بیچ ایک کانٹے کی طرح کھڑی تھی، اور باقی مسلم دنیا کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام ریاستیں ایک بہت بڑی سازش میں مصروف تھے۔ اور پھر 45 سالوں بعد 1044 میں سلجوق حکمران عماد الدین زنگی، جو کہ نور الدین زنگی کے والد تھے، حملہ کر کے کاؤنٹی آف ایڈیسا کا خاتمہ کر دیا۔ عماد الدین زنگی بڑی تیزی سے باقی صلیبی ریاستوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران اس کے ایک ملازم جو کہ صلیبی جاسوس تھے، اس نے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ اس کے بعد یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ حلب پر نور الدین زنگی اور موصل پر اس کے بھائی سیف الدین زنگی حکمران بنے۔ 1046 نور الدین زنگی مشکل ترین وقت میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی امید بن کر ابھرے۔ نور الدین زنگی کا ایک ہی خواب تھا، بیت المقدس فتح کرنا، باقی صلیبی ریاستوں کا خاتمہ کرنا، لیکن تن تنہا یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے ایک مضبوط ریاست اور مسلمانوں کی ایک مضبوط اتحاد کی ضرورت تھی۔ اسی دوران صلیبیوں نے حملہ کر کے دا کاؤنٹی آف ایڈیسا واپس لینے کی کوشش کی۔ نور الدین زنگی نے نہ صرف صلیبیوں کو شکست دی بلکہ اس ریاست کے تمام قلعوں کو مسمار کیا تاکہ صلیبی دوبارہ اس ریاست پر قبضہ نہ کر سکے۔ یہ واقعہ دوسری صلیبی جنگ کی بنیاد بنا۔ عیسائی پوپ جین کی التجا پر یورپ میں ایک بار پھر بڑی جنگ کی تیاریاں ہونے لگی، اور اسی طرح فرانس کے بادشاہ لوئس ہفتم اور جرمنی کے بادشاہ کونریڈ زوم نے ایک بہت بڑی لشکر لے کر ڈیماسکس پر حملہ کر دیا۔ مشکل ترین وقت تھا مسلمانوں کے لیے۔ نور الدین زنگی نے ایک بہت بڑی لشکر کے ساتھ دمشق کے حاکم محی الدین انور کی مدد کی، اور دونوں فوجیوں نے مل کر صلیبیوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا اور صلیبیوں کو شکست دی۔ اسی طرح نور الدین زنگی کی حکمت عملی سے
सलीबी दूसरी जंग हार गए और मुसलमान एक बहुत बड़ी तबाही से बच गए। इस फतह ने नूरुद्दीन जंगी की इस यकीन में काफी इजाफा किया कि अगर हमने बैतुल मुक़द्दस वापस ले लिए और सलीबियों को यहाँ से निकालना है तो हमें एक और मुत्तहिद होना पड़ेगा। और उसके बाद नूरुद्दीन जंगी ने सैफुद्दीन जंगी की मौत के बाद मौसल को भी अपनी रियासत में शामिल किया। इसी तरह शाम और इराक को मिलाकर एक रियासत बनाई और इसी दौरान दिमश्क के हाकिम मोहिउद्दीन अनवर का इंतकाल होता है और उसके बाद जमालुद्दीन मोहम्मद वहाँ के हुक्मरान बनते हैं। जमालुद्दीन मोहम्मद का झुकाव सलीबियों की तरफ होता है और ये मुसलमानों की इत्तेहाद की राह में सबसे बड़े रुकावट बनते हैं। और फिर नूरुद्दीन जंगी अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से वहाँ की फौज और आवाम की हिमायत हासिल करने में कामयाब होते हैं। और उसके बाद नूरुद्दीन जंगी 1054 में दिमश्क का मुहासरा करते हैं और बगैर किसी जंग के, बगैर किसी खून खराबे के दिमश्क पर कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद नूरुद्दीन जंगी दिमश्क को अपना दारुल खिलाफा और मुस्लिम इत्तेहाद का मरकज बनाते हैं और इसी तरह शाम और इराक को मिलाकर एक मजबूत जंगी सल्तनत की बुनियाद रखते हैं। और फिर नूरुद्दीन जंगी ने अपनी इस सल्तनत को हर लिहाज से मजबूत किया, लोगों का एतमाद हासिल किया, बेशुमार मसाजिद बनवाए, मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनवाए, मुसाफिरों के लिए सराय होटल बनवाए, रियासत का पैसा अवाम की फलाह और बहबूद पर खर्च किए, इश्क व इशरत और मोहल्लात के बजाय इंतहाई सादगी वाली जिंदगी गुजारी। इस वजह से लोग उन्हें पसंद करने लगे। नूरुद्दीन जंगी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से बेतहाशा मोहब्बत थी। इस हवाले से तारीख की किताबों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी नूरुद्दीन जंगी से मंसूब है, लेकिन कुछ लोग इसको एक फर्जी कहानी भी समझते हैं। 1162 की एक रात थी, दिमश्क में हर तरफ सन्नाटा था। नूरुद्दीन जंगी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आराम फरमा रहे थे तो ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दो नीली आंखों वाले आदमियों की तरफ इशारा करके बताते हैं कि इनसे मेरी हिफाजत करें। और इसी रात नूरुद्दीन जंगी को सेम यही ख्वाब 3 दफा दोहराया जाता है और फिर नूरुद्दीन जंगी घबरा कर जाग जाते हैं और अपनी वजीर को बुलाकर इस ख्वाब के बारे में बताते हैं और फिर खामोशी से मदीना की तरफ रवाना होते हैं। 16 दिनों के सफर के बाद मदीना पहुंचते हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नफल अदा करने के बाद आप मदीना के तमाम लोगों को खाने की दावत देते हैं। तमाम लोग जमा होते हैं, आप सबकी चेहरों को बगौर जायजा लेते हैं, लेकिन वो 2 बंदे उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं जो ख्वाब में दिखाए गए थे। और फिर नूरुद्दीन जंगी ने लोगों से पूछा कोई रह तो नहीं गया जो इस दावत में शरीक ना हो। काफी तफ्तीश के बाद पता चला कि 2 गैर मुल्की जो मस्जिद नबवी के करीब रिहाइश पजीर है, अपनी इबादत गुजारी और तकवादारी के लिए मशहूर है, इस महफिल में शामिल नहीं है। नूरुद्दीन जंगी ने फौरन उन्हें हाजिर करने का हुक्म दिया और जैसे ही नूरुद्दीन जंगी के सामने आए, नूरुद्दीन जंगी फौरन पहचान गया ये वही बंदे हैं जो ख्वाब में दिखाए गए थे। नूरुद्दीन जंगी ने उनसे बहुत सारे सवालात किए लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला और फिर उनको लेकर उस जगह पहुंचे जहां वो रिहाइश पजीर थे। तमाम कमरे की तलाशी ली गई लेकिन किताबों और कीमती सामान के अलावा कुछ खास नहीं मिला। नूरुद्दीन जंगी काफी परेशान हुए लेकिन अचानक उनकी नजर जमीन पर बिछी हुई चटाई पर पड़ी और चटाई उठाने का हुक्म दिया। जैसे ही चटाई उठाई उसके नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर था और जब पत्थर हटाया तो एक बहुत बड़ा सुरंग नजर आया जिसकी डायरेक्शन रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थी। और फिर इन दोनों ने इतराफ किया कि हम सलेबियों की तरफ से भेजे गए जासूस हैं और हमारा मकसद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्द खाकी मुबारक को चोरी करना है, नऊज़ बिल्लाह। और फिर नूरुद्दीन जंगी ने इन दोनों को सख्त सजा दी और रोज़ा अक़दस के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा खंदक खुदवाकर उसमें सीसा पिघलाकर भरवा दिया ताकि आइंदा इसी तरह की हरकत कोई भी ना कर सके। और कहा जाता है इसके बाद नूरुद्दीन जंगी हमेशा इस बात पर फख्र महसूस करते थे कि मुझ जैसे गुनहगार को इतने बड़े मकसद के लिए चुना गया। दूसरी सलीबी की जंग के बाद नूरुद्दीन जंगी ने अपनी रियासत को काफी मजबूत किया था। अब उसने दिफाई हिकमत अमली के बजाय खुलकर सलीबियों पर वार शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने रियासत ताकिया काउंटी ऑफ एंटॉइक पर हमला कर दिया। दरअसल अंताकिया तुर्की और शाम के दरमियान एक मजबूत तरीन कल्ला था। यहाँ का सलीबी जंगजू हुक्मरान रेम्योन मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ था। 1149 में नूरुद्दीन जंगी ने बैटल ऑफ इनाफ में कोई इबरतनाक शिकस्त दी। रेम्योन मारा गया और अंताकिया के बहुत सारे इलाके और खासकर हारिम कल्ला फतह किया, जिससे इस रियासत की दिफाई हैसियत काफी कमजोर हुई। लेकिन ये रियासत बदस्तूर कायम रही और उसके बाद नूरुद्दीन जंगी ने फौरन तिरापलस पर हमला कर दिया।
ये सलीबी रियासत बेरीरून के किनारे वाक़या थी। नूरुद्दीन जंगी ने इस रियासत के हुक्मरान रेमोन II को शिकस्त देकर इस रियासत की दिफाई पोजीशन को सिर्फ उनके कल्लों तक महदूद किया। इन हमलों के बाद ये दोनों रियासतें इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब इनसे मुसलमानों के लिए कोई खतरा नहीं था। इन रियासतों को कमजोर करने के बाद और अब नूरुद्दीन जंगी ने अपनी रियासत को मजीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए शेरी कोह और सलाहुद्दीन अयूबी की क़ियादत में एक लश्कर मिस्र की तरफ रवाना किया। दरअसल मिस्र पर फातमी खिलाफत थी और ये बैतुल मुक़द्दस फतह करने और मुसलमानों के इत्तेहाद की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। इस सल्तनत के खात्मे के बाद सलाहुद्दीन अयूबी यहाँ के गवर्नर बने। मिस्र फतह करने के बाद नूरुद्दीन जंगी इस काबिल हो चुके थे कि वो अपना ख्वाब बैतुल मुक़द्दस फतह करना आसानी से पूरा कर सकते थे। 1074 में नूरुद्दीन जंगी ने एक मुहिम शुरू की। शाम, लबनान, मिस्र और इराक के तमाम लोग जिहाद के जज्बे से और बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए जोक दर जोक नूरुद्दीन जंगी की फौज में शामिल होने लगे और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी होने लगी। बैतुल मुक़द्दस वापस लेने का ख्वाब पूरा होने वाला था, लेकिन मौत जिसने इन तमाम इरादों पर पानी फेर दिया। दरअसल इस मुहिम को नाकाम बनाने के लिए नूरुद्दीन जंगी को जहर दिया गया, जिससे उसकी मौत हुई। दरअसल नूरुद्दीन जंगी बैतुल मुक़द्दस फतह करने की तमाम राहें हमवार कर चुके थे और मुश्किल तरीन वक्त में मुसलमानों को मुत्तहिद करके इस काबिल बना चुके थे कि वो अपनी हिफाजत के साथ साथ बैतुल मुक़द्दस वापस ले सके। और फिर इसी रास्ते पर चलकर सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह की और इसी तरह नूरुद्दीन जंगी का ख्वाब पूरा हुआ। इस पर एक तफसीली वीडियो इस चैनल पर मौजूद है जो आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने दूसरी सलीबी रियासत तराबलिस पर हमला करके उसका भी खात्मा कर दिया। इसी तरह द किंगडम ऑफ यरूशलेम और द किंगडम ऑफ ट्रिपोली का खात्मा सलाहुद्दीन के हाथों हुआ। मशरिक़ वुस्ता में आखिरी सलीबी रियासत अंताकिया 1268 तक कायम रही और फिर 1268 में ममलूक सुल्तान बेब्रस ने इस पर हमला करके सलीबियों को हमेशा हमेशा के लिए मशरिक़ वुस्ता से निकाल दिया। और आज भी तमाम मिडल ईस्ट इजराइल के अलावा मुसलमानों के पास है और इसका क्रेडिट नूरुद्दीन जंगी को जाता है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जब मुसलमान मुत्तहिद हो तो वो दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। प्लीज सपोर्ट करने और दुनिया की शानदार हिस्ट्री देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।